Okay, let's we start. Millikan soil droplet experiment, what we are trying to find actually in this topic is, it is the, main it is depending upon the charge of an electron, that there is a charge particle present in the whatever the species we are spreading in the, or whatever we are spraying in the experiment. It is containing some charge, and what is that charge actually, and what is the value of that charge? It is a hypothesis experiment actually, and we are going to find the charge of electron at the end. Fine. Okay. What it tells and how do we perform this Millikan soil droplet experiment? First of all, you need to understand and you need to have an idea about the apparatus. This is the apparatus. In the previous slide, if you see that previous slide, this is the apparatus actually in real form, but obviously it is difficult for you to understand the basic concept, so that's why we are creating an imaginary picture here for you. Okay, so first of all, what are the mandatory things for us to have in the experiment? These are two plates actually which are present here. These are two plates. One is obviously cathode and the other is anode. There is a hole in it. It is not shown here, but there is a hole in it, and what we are going to do, this atomizer we will use just to spray the oil droplets from here, and then there is a battery, and that battery is used to charge this part. Okay, and then there is a telescope just to know what's going on inside this part, and then there are these two charge plates. Let me again explain the apparatus part. Apparatus part contain two electrodes. These are the two electrodes which are present here. Then we have atomizer. This is our atomizer. Then we have telescope just to know the procedure going on. We will just observe it. Then we have, last but not the least, there is a battery, and battery is used to charge these two plates and to create an electric and magnetic field here. This is the main concept which we have to understand here. Okay, before starting and reading the slides, let's we have a understanding of this thing. Okay, what's going on here? We will just spray out the drops of oil from here, like we will just press this atomizer and यहाँ से कुछ spray होगा. So obviously there is a hole in it. ठीक है, for example, if you see this white part, छोटा सा एक white part है, there is a hole in it. So these are oil droplets. Suppose कीजिए the green parts are oil droplets. They will start moving. एक दो जो हैं वो यहाँ से नीचे गिर जाएंगे. ठीक है, एंड वंस इट्स डन, सो वी विल जस्ट क्लोज दैट होल. ये जो होल था हमारे पास, वी विल जस्ट क्लोज दैट होल सो दैट के और पार्टिकल्स नीचे ना आए. देन देयर इज़ अ बैटरी यहाँ पर है. बैटरी क्या करेगी कि करंट जो है, ऑलरेडी ये प्लेट्स जो हैं ये चार्ज्ड हैं, तो वो जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट होगा, इट विल स्टार्ट गेटिंग अ चार्ज. अच्छा, होता क्या है इन एक्चुअल प्रैक्टिस? इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये होता है कि जब भी आपके पास वेलोसिटी कोई भी चीज़ जा रही होती है, तो उसको हम कहते हैं कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg. यही होता है कि आपके पास ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, और वेलोसिटी उसका और मास उसको क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं ये चीज़ें, और होना भी यही चाहिए हमारे पास. बट अगर आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट पढ़ना चाह रहे हैं वो ये पढ़ना चाह रहे हैं कि आपने क्या किया कि आप ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ये क्या करेंगे, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसको क्या कर देंगे, उसको ये नेगेटिवली चार्ज बना देंगे. ठीक है, एंड ऐसे ही सेट के ऊपर वाली अगर हम लोग बात करते हैं कि ऊपर वाली हमारी जो प्लेट थी वो कौन सी है, दैट्स कैथोड, और नीचे वाली प्लेट हमारी क्या है, इट इज़ एनोड. फाइन. अब होगा क्या, सॉरी, ऊपर वाली प्लेट हमारी पॉजिटिव है और नीचे वाली प्लेट हमारी नेगेटिव है. ठीक है, ऊपर वाला है दिस वन इज़ एनोड. लेट मी राइट इट. दिस वन इज़ एनोड एंड द बिलो जो है इसको हम यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, बट इट इज़ कैथोड. ओके, अब क्या हुआ कि हो क्या रहा था कि दैट पार्टिकल्स वर मूविंग डाउनवर्ड, ऑब्वियसली क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी. बट जैसे ही वो चार्ज हुआ, कौन, दैट ऑयल ड्रॉपलेट, ये ऑयल ड्रॉपलेट ने जैसे ही चार्ज लिया, कि कौन सा चार्ज कंटेन कर लेगा ये ऑयल ड्रॉपलेट, नेगेटिव चार्ज कंटेन कर लेगा. जब नेगेटिव चार्ज इसने कंटेन कर लिया, सो इट will now not move toward that negative part. Why it will not move toward that negative part? Because of the same charges. It will start moving opposite to the direction.
if it will start moving opposite to the direction, so what will happen with the formula which we have studied, that was V is directly proportional to mg. हम लोग ये बात कर रहे थे ना, V is directly proportional to mg. so ये कब था? ये तब था जब आपके पास जो आपका जो भी ऑयल ड्रॉपलेट था वो डायरेक्टली नीचे जा रहा था. अब क्या होगा? यू विल राइट द फार्मूला विद व्हाट? नेगेटिव साइन ऑफ द g, बिकॉज इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है. और आपके पास उसको जो पहली वाली वेलोसिटी उसको आपने v1 का नाम देना है, जो दूसरी वाली वेलोसिटी होगी उसको आप v2 का नाम दोगे, और फार्मूला उसके अंदर आप लोगों ने एक एडिशन कर देनी है e की. वाई वी आर एडिंग e हेयर? बिकॉज यहाँ पर जब नीचे आपका ऑयल ड्रॉपलेट आ रहा था इट वॉज नॉट चार्ज, नाउ इट इज़ गोइंग बैक, दैट्स वाई इसके ऊपर चार्ज आ गया है. तो इसके अंदर मास तो आपके पास होगा, साथ में आपने एक नई चीज़ का इजाफा कर दिया, साथ में आपने एक न्यू चीज़ ऐड कर दी. दिस इज़ नोन एज ड्यू टू द चार्ज. फाइन. देन वी हैव, इसके बाद इसके आपकी बुक में एक छोटी सी डेरिवेशन दी हुई है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं मैं यहाँ पे ही आपके सामने लिख देती हूँ. अगर आप खोलेंगे अपनी बुक तो आप लोगों को मिल जाएगा वो इजीली. उसके अंदर क्या कह रहे हैं कि जस्ट सिंपल डिवाइड V1 विद V2. ये V1 और V2 क्या है? ये V1 वही वाली वैल्यू है. V1 हमारे पास क्या थी? दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg बिकॉज दैट ऑयल ड्रॉपलेट वाज गोइंग डाउनवर्ड, एंड देन वी हैड E बिकॉज ऑफ आपके पास चार्ज था, एंड माइनस mg. दिस इज़ द होल डेरिवेशन जो आप लोगों ने, एक छोटी सी डेरिवेशन, एक छोटा सा फार्मूला है जो आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर है क्या क्या, एंड आपको इनको रिस्पेक्टिवली बताना क्या है कि V1 V2 आपके पास क्या हैं? दे आर वेलोसिटीज़, और g आपके पास ग्रेविटी है, और m आपके पास क्या है? मास है. एंड चार्ज के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे. चार्ज ऑफ कूलम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस चार्ज को हमने मालूम करना है. ठीक है. दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट, मिलीकंस ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मालूम किया था. अब यहाँ पर ये जो हम लोगों ने इधर आपके सामने लिखा हुआ है, इस स्लाइड को भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू मेजर द चार्ज ऑन ड्रॉप मिलीकंस यूज्ड अ डिवाइस कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल माइक्रोबैलेंस. इलेक्ट्रिकल माइक्रोबैलेंस का क्या मतलब है कि ही जस्ट यूज दीज प्लेट्स इन सच अ वे दैट द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वॉज बैलेंस्ड, एंड द चार्ज पार्टिकल दैट ऑयल पार्टिकल वॉज रिटेन्ड इन द एक स्टैटिक पोजीशन में, उसको बीच में रोका गया था थोड़ी देर के लिए. एंड देन ही अलाउड द ऑयल ड्रॉपलेट टू फॉल इनटू अ रीजन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स प्लेट, and then the charges on the plates mean that there is an electric field in the space between the plates which creates a potential difference between the top plate and the bottom plate. और ये वही वाली बात है जो मैंने आपको पहले से बताई है, पहले समझाई है कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ ये बैटरी जो थी, दैट बैटरी वाज प्रोड्यूसिंग चार्ज हेयर, और वो जो आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट था इट स्टार्ट मूविंग अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट्स रिटन इन योर बुक ऑल्सो विद द फार्मूला. नाउ कम्स मेन, इसके अंदर जो एक रीज़न है उसकी बात करेंगे. सपोज what is this q is the charge particle, this is the m, this is the charges आपके पास from top to bottom जो attraction और repulsion हो रही है वो हो रही है. if you read these slides, यहाँ लिखा हुआ है these plates were connected in such a way that the magnitude of the electric field and therefore the electric force on the droplet could be adjusted. बस सिंपल यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपके पास चार्ज था उसके ऊपर फील्ड्स को एडजस्ट किया गया था by applying the different voltage, and by adjusting the electric force to balance to downward gravitational force, Millikan's could bring a charge drop oil to rest in the region between the plates. और थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट में लाए गए थे. क्यों? क्योंकि चार्ज मालूम करना था, दैट्स वाई. उसके बाद ये बात कर रहे हैं मिलीकंस ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट में कि आपने अगर मेजरमेंट, अच्छा दिस फार्मूला इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, सो दोज थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड, दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. एक्चुअली व्हाट इज़ क्यू? इट इज़ अ चार्ज. व्हाट इज़ एम? इट इज़ अ मास. व्हाट इज़ जी? इट इज़ अ ग्रेविटी. डेल्टा डी एंड आपके पास डेल्टा वी क्या है कि ये डिस्टेंस और वेलोसिटीज़ को जो है आपके पास शो कर रहे हैं. तो आपने इनके अंदर ये फार्मूला, खैर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो आई विल से कि डोंट यू इसको याद नहीं रखिएगा. जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको डेरिवेशन आपकी बुक में समझा दी है, बता दी है कि वो आप लोगों के पास होनी चाहिए. नाउ कम्स द चार्ज पार्ट. चार्ज पार्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि चार्ज किस तरह से बैलेंस होगा. तो इसके अंदर हुआ ये था कि मिलीकंस एक्चुअली यही जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि ही जस्ट पुट द apparatus in that setup and then he retained that charge and then he again repeated the same experiment and he started calculating the charge of electron. तो ये उन्होंने बहुत दफ़ा रिपीटेडली इस काम को किया था, रिपीटिशन पे किया था, एंड उन्होंने फिर एक थ्योरेटिकल सा एक हाइपोथेसिस अपनी
बता दी थी कि ये होता है, इट इज़ अ चार्ज। और वैल्यूज़ ऑफ द चार्ज ही मेजर्ड वर होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ सम स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड दिस इज़ द चार्ज विच वी नो। एंड आई विल सजेस्ट कि ये वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बिकॉज दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू यूज़ इन फ्यू ऑफ द न्यूमेरिकल्स नाउ, कि आपने कैलकुलेशन की करनी होगी तो वहाँ होगी। एंड देन मिलिकन्स कंक्लूडेड दिस चार्ज वैल्यू इक्वल द एलिमेंट्री चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड देन ही कंक्लूडेड, ही एक्चुअली प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ टाइम द एक्सपेरिमेंट एंड देन ही सेड कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। फाइन। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है यहाँ, एक मिलिकन्स और वही जो पीछे फार्मूला था उसकी यहाँ पर बता दिया है उन्होंने आपको कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ है, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये फार्मूला है, बाकी चीज़ें ना करें। आई विल से कि वो बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा नॉलेज के अंदर जा रही हैं। नाउ देयर इज़ अ कैलकुलेशन पार्ट, इट इज़ गिवन इन योर बुक। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ दिस एज वी हैव सीन इट, ये पीछे हमने स्लाइड में देखा है कि ये है। अब आपको फॉर एग्जांपल इफ़ यू आस्क्ड टू कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला आपके पास चार्ज ओवर चार्ज टू मास रेशियो होता है। अब आपके पास क्या है कि आपने करना क्या है, दिस इज़ गिवन ई, दिस ई इज़ वी हैव, मतलब हमें पता लग गया है कि ई की वैल्यू क्या है, इट्स 1.60 एंड ई बाय एम रेशो इट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ द मास। इसकी आप कैलकुलेशन कर लें, आप चेक कीजिए आप लोगों का आंसर क्या आता है। अच्छा, दीज आर द फिक्स्ड वैल्यूज़, फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं ये, इनको चेंज नहीं करेंगे हम। और फिर आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास ये है, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली हमें पता है कि अगर हमारे पास हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने होते हैं तो वी विल जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई दैम विद द एवोगैड्रो नंबर एंड दैट्स हाउ वी कैलकुलेट इट। एंड ये आपके पास आ जाएगा और उसको आपने फर्दर ऑन फिर वैल्यू जो है उसकी कैलकुलेशन की है आपने, उसके बाद आपने आंसर, अच्छा ये इस पे कंफ्यूज नहीं होएगा कि क्यों है ये, होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। हेयर इट इज़ रिटन विद 54.86 एंड इट इज़ 5.486। सो ये थोड़ा सा ये है केजी के साथ अगर आपने लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव अ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज़ दिस, तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 1 मोल, सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है विद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जितने आपके पास कितने होंगे। इट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। इफ़ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड कि ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वी हैव जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड दीज वैल्यूज़, कुछ भी नहीं है इसमें। दीज आर द फिक्स वैल्यू। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ फिक्स्ड, और ये आपके पास ये वैल्यू फिक्स है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास कूलम्स में वैल्यू आ गई। दिस इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई किया है विद एवोगैड्रो नंबर, और ये आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन थी जो हमने कैलकुलेट करके देखी है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनोड रेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेस। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के क्या हम लोग करना चाह रहे थे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।